Jai Hind children, Vande Mataram. In this part, this is the last part and I will explain you here how to prove the sums. Okay, sums कैसे prove करना है that I am going to explain you, and from different exercises I will take the sum so you will get the better idea. मैंने आप लोगों को वैसे तो इससे पहले everything I explain, all the criterias of congruence of triangle. Now how to make it practical, let's talk about that. In 7.1 फर्स्ट सम देखिए आप, 7.1 में फर्स्ट सम देखो अब कैसे उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते हैं. फिगर इज गिवन हियर लाइक दिस वे. ओके, now see, by symbol it is given that these two sides are equal, and by symbol this is given here, this angle and this angle also equal. Its name is A, B, C, and this one is D. Okay, what is given here? Okay, in a quadrilateral, so your given is, given means the information. ABCD is a quadrilateral. We read like this way, ABCD is a quadrilateral. Second information is given, AC equal to AD, and AB bisect angle A. Okay, you have to show, to prove, you have to prove that triangle ABC congruent triangle ABD. This one you have to prove. Is it clear? And one more question has asked here. What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अभी हमारा ख्याल बताते हैं भाई. देखो जरा यहाँ पे. So first of first, after writing this much, given to prove, we have to start the sum with proof. 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 Is it clear? So whatever information is given, according to that we have to set the correspondence here. So let's start like this way. Triangle D, I am taking like this way, DAB correspondence triangle. I have started like this way, DAB. So I am from here, CAB. अब जरा चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या ये सेट हो रहा है? देखो ए के ऊपर सेट हो रहा है, देख लो यहाँ पे, बराबर है. लास्ट में बी के ऊपर सेट हो रहा है, बराबर है. ओके, एंड डी और सी दोनों एक दूसरे के ऊपर सेट हो रहे हैं. वो भी जो है, ये भी हो गया, चेक कर लिया करस्पॉन्डेंस बराबर है या नहीं है. अच्छा, दूसरा, अब यहां पे अगर आप देखो तो ए सी यानी ये AC, तो यहां पर जो है क्या कहते हैं आपका AD आना चाहिए. AC कॉन्ग्रुएंट AD आना चाहिए. DAB correspondence CAB. AC यहां पे आ रहा है, तो यहां पे देखो ये AD आ रहा है. इज इट क्लियर? देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सेट हो रहे हैं. ओके, एंगल A के साथ सेट हो रहा है. इट मींस आवर करस्पॉन्डेंस इज करेक्ट. यू हैव टू चेक दिस वन व्हेनेवर यू सॉल्व द सम. इज इट क्लियर? हाउ टू डू दैट I explain you here. Okay, you check correspondence, then only
you do further. Now, whatever information are given, according to that you do. Correspondence is clear. Now, AC congruent AD, because AC equal to AD, that is given. यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है. ओके. सेकंड, AB congruent AB दिखाई दे रहा है, that is your common side. ओके. एंगल CAB congruent angle DAB. Okay, reason you can write. AB is bisector of angle A, that is also given. Therefore, triangle ABC congruent triangle ABD. अंदाज लगा सकते हो भाई, और कौन सा टेस्ट है, लगाओ दिमाग जरा. देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. सो यू राइट हियर SAS टेस्ट. अब उसने क्वेश्चन पूछा लास्ट में, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. सो यू राइट हियर therefore BC congruent BD. Why? CSCT congruent side of corresponding triangle. बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ऑटोमेटिकली साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो गई. एंड दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द राइडल्स. अगर आपको कुछ भी राइडल्स जैसे आते हैं तो आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना है. देख लो जरा इसको एक बार, जस्ट सी इट, फिर हम लोग आगे जो है और चलते हैं. आपको और 2-3 मजेदार में जो है सम्स बताता हूँ. चिल्ड्रन, ये 7.2 का सेकेंड सम है. मैं आपको अलग अलग वैरायटीज के सम बता रहा हूँ. सी हाउ टू यूज द ब्रेन, कैसे दिमाग लगाना है दिस काइंड ऑफ रिडल्स इफ इट विल कम इन एग्जाम. ओके. वैसे तो आपके सरकार ने जो है ये सब जो है पोर्शन में से हटा दिया है, लेकिन हमको आदेश दिया है कि जो भी ऐसे पार्ट है वो सब आपको एक्सप्लेन तो करने ही है फॉर योर फ्यूचर. ओके, एंड वी आर फुलफिलिंग आवर ड्यूटी हियर. Is it clear? In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector का मतलब होता है कि किसी भी एंगल के टेंजेंट से, सॉरी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर स्ट्रेट लाइन में खींची हुई कोई रेज. ओके, तो ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली. बराबर. तो आपको ये प्रूफ करके देना है. और दूसरा उसने ये भी बोल दिया कि AB और AC कॉन्ग्रुएंट है. बराबर, ये गिवन में दे रखा है उसने. तो 2 इंफॉर्मेशन दे रखी. पहला बोला है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ओके, एंड सेकंड उसने बोला है कि AB इक्वल टू AC. सो यू हैव टू प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. बराबर है. आइसोसेलेस का मतलब ये होता है कि जिस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं. अगर 2 साइड इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली 2 एंगल भी जो है बेस के एंगल भी इक्वल
होंगे। अब बेस के एंगल इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब आप इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। पहला, आप हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ले लो। ये लाइन अपने आप में कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गया, कॉन्ग्रुएंट। दूसरा, एंगल साइड एंगल से भी ये प्रूव हो सकता है। तीसरा, साइड एंगल साइड से भी प्रूव हो सकता है। चौथा, साइड 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 से भी प्रूव हो सकता है, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये साइड और ये साइड ऑटोमेटिकली, तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो उस हिसाब से आप इसको प्रूव, यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर। ओके, मैं इसको एंगल साइड एंगल से जो है प्रूव कर रहा हूं मैं, बराबर है। ऑलरेडी इन्होंने वैसे तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से भी जा सकते हो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो हाउ टू राइट इट? गिवन to prove triangle ABC is an isosceles triangle. देखो बच्चों, दिस टाइप ऑफ प्रूफ इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रूफ। ये इनडायरेक्ट प्रूफ है, बराबर है। कैसे? देखो, अब यहां पे तुमको ध्यान आएगा। प्रूफ, ओके, पहले तो करस्पॉन्डेंस सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रायंगल ए डी सी करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ए डी बी लिखते हैं, ए डी बी करस्पॉन्डेंस ए डी सी। अब देखो जरा, ए डी के ऊपर आ गए, यस। ए बी, ये देखो, तो इधर भी यहाँ पे ए सी हो रहा है। और तीसरा है, देखो, इधर से डी बी इधर से शुरू हो रहा है, तो इधर से डी सी इधर से शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा करस्पॉन्डेंस परफेक्ट है। इज इट क्लियर? सो करस्पॉन्डेंस एक बार सेट हो गया, नाउ वी कैन राइट AD perpendicular BC, that is given. Therefore, angle ADB congruent angle ADC, reason both are right angle, दोनों राइट एंगल है। इज इट क्लियर? राइट एंगल है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये अगर ये 90 है और ये 90 है, साइड एडी कॉन्ग्रुएंट एडी, कॉमन साइड, ओके, AB congruent AC, that is given. Therefore, triangle ADB congruent triangle ADC. Is it clear? RHS, hypotenuse side test. But ABD plus ADC इक्वल टू ABC, बराबर है ना? अगर ये दोनों ट्रायंगल ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? ABC। AB इक्वल टू AC, प्रूव्ड। हमने प्रूव किया है यहाँ पे क्योंकि गिवन दिया हुआ था। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। देखो, ऐसा जो प्रूफ होता है, that proof is indirect proof। Is it clear? Now last, and this chapter will be over, and most important concept is this one you have to keep in your mind। Okay, inequalities in the triangle, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले इसको देख लो, इसको अंडरस्टैंड कर लो पहले एक बार जरा।
इस स्टेटमेंट को बच्चों में जस्टिफाई करूं उससे पहले तुम लोगों को 2-3 बातें यहाँ पे मैंने पहले भी बताई है, लेकिन जस्ट रिकॉल कर लेते हैं उसको। ओके, फर्स्ट इज दैट कि इफ वी ड्रॉ एनी ट्रायंगल, हम कोई भी ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अलग अलग टाइप्स मैंने आप लोगों को बताए थे। हमने नॉर्मली यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और मैं यहाँ पे जो है, चलो मान लेते हैं इसका मेजर 4 सेंटीमीटर है, इसका मेजर 7 सेंटीमीटर है और इसका मेजर 9 सेंटीमीटर है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट ट्रायंगल कब फ्रेम होगा? इफ यू एड द 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, if it will be greater than the third side, that triangle will be framed. अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, 7 plus 4 that is 11, 11 is greater than 8, then only triangle will form, तभी triangle बनेगा, otherwise no. 8 plus 4 12 greater than 7, 8 plus 7 15 greater than 4. okay, अगर दो साइड अगर बराबर नहीं हो रही, मान लो मैंने ये ट्रायंगल और बनाया, ये 7 सेंटीमीटर है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप लोग जो है अगर 3 plus 1 करोगे तो दैट इज 4, इट इज नॉट ग्रेटर देन 7. सिमिलरली 3 and 7 करोगे यहाँ 10, इट इज नॉट ग्रेटर देन 1. यानी दो साइड का एडिशन तीसरे साइड से जब बड़ा होगा देन ओनली ट्रायंगल विल बी फ्रेम्ड. ओके, ये जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्रायंगल, उसके बेस में सबसे पहले ये है. दूसरी मजेदार बात, whatever, अब ये इससे रिलेटेड है, whatever angle measure is greater, its opposite side also greater. जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होगी, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने का एंगल, यानी जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने की साइड भी सबसे छोटी होगी, वाइस वर्सा. अगर साइड सबसे छोटी है तो एंगल सबसे छोटा होगा, बराबर. अगर साइड सबसे बड़ी है तो अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, या अगर एंगल सबसे बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी. ये एक फैक्ट है जो आपको यहाँ पे इसने मेंशन किया. ये बोल रहा है इफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, देन द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर. तो जो भी साइड लार्जर है उसके सामने का एंगल भी लार्जर होगा. मान लो मैं यहाँ पे अगर इसको जो है इसको 80 डिग्री अगर मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे, बराबर है, तो डेफिनेटली ये जो है आपका समझो कुछ 30 डिग्री एंड दिस इज योर 70 डिग्री. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 70 30 100 प्लस 80 180, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे देखो, सबसे बड़ी साइड ये है तो सबसे बड़ा एंगल भी है, उसके बाद में छोटी साइड ये तो उससे बड़ा एंगल ही है, और सबसे छोटी साइड ये है तो ये एंगल आपका सबसे छोटा होगा. आप कितना कुछ भी ट्राई कर लो, बना के भी देखना घर में, यू विल गेट द आइडिया. ओके, दिस इज द अल्टीमेट कंसेप्ट ऑफ दिस पार्ट. अब यहाँ पे आप इसको किसी भी टेस्ट में कस के देख सकते हो, बराबर. इसको हम लोग राइट एंगल के टेस्ट में कस के देखो जरा, यू विल गेट द आइडिया. इन राइट एंगल ट्रायंगल the largest angle is 90 degree, so hypotenuse is the largest side. Yes or no? If obtuse angle triangle you are draw, okay, this angle is the largest one, suppose this is 130 degree, then its side also largest one. अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये साइड सबसे छोटी है तो डेफिनेटली ये एंगल भी सबसे छोटा होगा, ये साइड इससे बड़ी है तो ये एंगल इस एंगल से ये बड़ा होगा, और ये एंगल ये वाले एंगल से छोटा होगा. ओके, दैट वन यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट. आइसोसेलेस में अगर आप लोग देखोगे, आपको किसी में भी आप इसको चेक कर सकते हो. इक्विलेटरल में देखोगे तो देखो तीनों के तीनों साइड इक्वल है तो तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स आर इक्वल, 2 sides if are equal
तो ये दोनों एंगल भी इसके अपोजिट जो होंगे ये दोनों भी इक्वल ही होंगे और इसका मेजर कुछ अलग होगा. Is it clear? So this way we have completed this chapter triangle, and your next one, that is the quadrilateral. This is also unique chapter, children, and most important for your next year board and as well as this year. So we will try to complete in next two session. Okay, here this chapter is over. We are completed this one. Here you do a lot of practice. Whatever sums I will give you in PDF, you do that. Okay, bye. See you all of you.